Viewers, welcome to the second edition of the Cinema Show. This is a conversation series where Mr. Ashutosh Dutt Mishra and I together discuss movies that are capable of leaving impact, positive or negative, on the audience. So, if the viewers remember in the previous video, I promised that I would return back with Ashutosh Sir and would discuss another movie. So, for today's video, we have decided that we would discuss the movie that came in 2015 by debutant director of that time, Mr. Neeraj Khaiwan, and the name of the movie is Mashan. So, before I start this particular conversation, first let me welcome Ashutosh Sir. Welcome, sir. How are you doing? या हाय तने आई एम फाइन आप कैसे हैं Thank you very much, sir. I too am doing great. Thanks for asking. So, sir, since we already have decided that we would talk about Mashan, so the first thing that I would like to know from you, why do you love this movie so much? Because this is certainly in the list of your favorite movies. Please say something about it. Over to you, sir. या हाय तने जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम सेकंड शो में मशान पे बात करेंगे। आपने बताया भी कि ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर नीरज घेवान की मूवी है और बहुत उस समय 2016 2015 में ये जो है वो इंडिया में रिलीज की गई, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने भी ये फिल्म लगभग उसी दौरान देखी थी, 2015 में ये फिल्म आई थी। आई थिंक मैंने 2016 या 17 में ये फिल्म देखी थी एंड आई वाज फिल्म बाउंड कि व्हाट अ स्टोरी। और स्टोरी से ज्यादा भी, चाहे आप स्टोरी पे बात कर ले, गानों पे बात करें, एक ट्रेजिक फिल्म होने के बावजूद एंडिंग जो है वो ट्रेजिक है और थोड़ा सा होप देता हुआ एंड है। वो सारी चीजें, मतलब एक तो हिंदी हार्टलैंड जिसको आप बोलते हो, ये पूरा यूपी बिहार और बाकी का जो एरिया है, तो उस हार्टलैंड की जो पकड़ है, शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जो इस लेवल पे, हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर, बट उनका जॉनरा अलग था, वो थोड़ी अलग किस्म की फिल्में थी रोमांस के लेवल पे। अदरवाइज बॉलीवुड वाले जो है वो ट्रेजेडी और रोमांस के नाम पे तेरे नाम जैसी फिल्में, तो जो आबादी तेरे नाम जैसी फिल्म देख करके बड़ी हुई, हालांकि वो कल्ट क्लासिक है, वो भी Right. कल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। वो फिल्म बहुत हिट रही, लोग बाद में भी देखते हैं, बट स्टिल अगर आप लव स्टोरी जो ट्रेजेडी के फॉर्म में अंत में खत्म हो और हिंदी बैकग्राउंड की स्टोरी हो, हिंदी हार्टलैंड की स्टोरी हो, यूपी या बिहार के रीजन की स्टोरी दिखाई जाए, तो मेरे लिए मेरा खुद का जॉनरा जो है वो तेरे नाम जैसा नहीं था। मैं ऐसी स्टोरीज ही देखना या जानना समझना चाह रहा था, जैसे आप बहुत रॉ एंड रियल पिक्चराइजेशन जिसको आप कह सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ भी चीज को एक ओवर ये करण जौहर वाला यूज किया जा रहा है या उस पे सिल्वर रैपिंग की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम रॉ एंड रियल फॉर्मेट एंड स्टोरी। इसकी जो असल द हीरो ऑफ द फिल्म इज, इट्स अ स्टोरी आउटलाइन विच इज रिटन बाय वरुण ग्रोवर। तो ये सारी चीजें है जो इस फिल्म को अलग बनाती है और जो मैं इन्हीं चीजों की वजह से ये मेरी फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में भी है। Right, right, right. That's true. That's true. And I would like to add one more thing. The plot of this movie is quite realistic, or to some extent, quite close to the actual condition of Banaras, because the plot of the movie was written by, as Sir has rightly mentioned, Varun Grover, and Varun Grover has spent quality time at IIT BHU. So he's that kind of person who knows how the city of Banaras actually works. So, had someone else written the story of this movie, the story would have been slightly different. But since Warren Grover has written it himself, he has not missed any points uh, that you will think that this thing does not take place in Banaras. Okay, so he has mentioned everything quite accurately, and his story is, yes, quite realistic. Okay, sir, very good explanation. Now, I would like to know, and also I believe that viewers too will be quite interested in knowing the plot of the story. So please explain the plot of the story so that we can move ahead to different questions as well.
Please, sir, over to you. करना है पहले प्लॉट पे भी बात करेंगे हम। मैं दो चीजें और ऐड कर दूं। नीरज घेवन Sure, आपने बताया डेब्यूटी डायरेक्टर थे। ये sure. वही नीरज घेवन है जो आगे चल करके जिन्होंने सैक्रेड गेम्स और फिर अजीब दास्तांस, ये दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स पे है। काफी मतलब पॉपुलैरिटी भी मिली इन दो सीरीजों को और क्रिटिकल एक्लेमेशन भी आप कह सकते हैं कि इन दो सीरीज को मिला। Hmm. सो तो ही इज अ डायरेक्टर हु वाज एस्टैब्लिश्ड विद द फिल्म मशान। Hmm. और इसमें राइटर का भी ठीक ठाक रोल है। आपने बताया है कि वरुण ग्रोवर ने लिखा है Hmm. और वरुण की राइटिंग बेहद उम्दा है। अगर आप चाहे इस फिल्म को लेकर के भी या बात करें या उनके थोड़े से सैटारिकल कुछ वर्क वो लिखते हैं या स्टैंड अप भी करते हैं, वो भी सुने तो राइटिंग में आपको लगेगा कि वो उसमें लेवल है, उसमें क्वालिटी है। Right. और वरुण आपने मेंशन किया है कि उन्होंने आईआईटी बीएचयू से वहां से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो 4 साल वो वहां पे रहे हैं अपने जीवन का, शायद 4 या 6 साल वो बनारस में रहे हैं, तो उसकी नब्ज वो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाए हैं। Correct. Correct. एक भी सीन, जो वेरी राइटली मेंशन, कि कोई भी सीन आपको ऐसा नहीं है जो आपको नहीं लगे कि नहीं ये बनारस के बाहर की है या रॉ या रियल नहीं। Right. रियलिटी को एकदम रॉ फॉर्म में परोसा गया है इस फिल्म में, जो इस फिल्म की बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं प्लॉट पे। प्लॉट बेसिकली दो लोगों की कहानी है। दो Mm-hmm. अलग अलग लोग, दो धाराएं हैं बेसिकली, अगर आप इसको ध्यान से समझें, जो एक जगह पे जाकर के मिलते हैं। Mm. दोनों की अपनी कहानी है और दोनों की अपनी सफरिंग्स है। सो दिस स्टोरी, जैसे द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मसान, Mm. which is, तो वो शमशान को ही वो रेफर कर रहे हैं, जो क्रेमेटोरियम है। तो Correct. तो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द दिस पर्टिकुलर मूवी। तो Right. अगर आप इसको समझना चाहें तो दो अलग अलग धाराएं हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, दो अलग अलग कहानी चल रही है जो एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है। बनारस के जो शमशान घाट वाले वो घाट जहां पे दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, वहां Mm. से जाकर के और फाइनली इलाहाबाद के संगम पे जाकर के कहानी खत्म होती है। तो Mm. ये दो धाराएं जाकर के जिनका संगम होता है इलाहाबाद में। Right. मैं थोड़ा सा स्टोरी पे बात कर लूं तो दो कैरेक्टर है। एक विकी कौशल का कैरेक्टर, विकी कौशल ने जिस कैरेक्टर को निभाया है, दीपक कुमार नाम है उसका। और Right. जो कहानी की दूसरी प्रोटैगनिस्ट है, जिसे ऋचा चड्ढा ने निभाया है, देवी पाठक उस Mm-hmm. कैरेक्टर का नाम। तो ये दीपक कुमार और देवी पाठक, यही दो धाराएं हैं जिनकी ये कहानी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया है देवी पाठक के साथ, और Right. वो That इंसिडेंट unfortunate लाइफ, incident. हाँ, दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है Right. सफरिंग को लेकर। Correct. क्योंकि उनके फादर एक नॉर्मल पुजारी हैं, विद्याधर पाठक, उनका भी रोल इंपॉर्टेंट है, संजय मिश्रा ने निभाया है। Right. तो और उनको उस इंसिडेंट की वजह से वो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। और फिर Right. उस इंसिडेंट की वजह से जो सफरिंग शुरू होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे देवी पाठक के साथ, ये उसकी स्टोरी है। Right. दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा, जो विकी कौशल का, विकी कौशल ने जिस कैरेक्टर को निभाया है, दीपक कुमार का कैरेक्टर, Right. उसकी सफरिंग साइकोलॉजिकल कम है, उसकी सफरिंग सोसाइटल ज्यादा है। Correct. वो जो Correct. सफर कर रहा है वो सोसाइटी की वजह से सफर कर रहा है। एक ऐसा लड़का जो द सो कॉल्ड अनटचेबल और द सो कॉल्ड डोम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। Right. वो जो संस्कार में मदद करते हैं, लाशों को जलाने में, डेड बॉडीज को ये करने में। Right. और वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, शायद सिविल इंजीनियरिंग, इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल। तो Okay. सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो कर रहा है, डिप्लोमा ले रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज से। Mm-hmm. और तो वो ये चीज कर रहा है, और उसका एक अफेयर होता है एक अपर कास्ट गर्ल से। Mm-hmm. उस अफेयर की वजह से वो अफेयर, वो इस बात को समझता है कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, Mm-hmm. और उसकी वजह से जो अंदर ही अंदर उसकी सफरिंग है, ही कैन नॉट डिस्क्लोज अफेयर, और फिर उस अफेयर का जो एंड होता है, विच इज अ ट्रेजिक एंड। ठीक है, उस ट्रेजिक एंड की जो सफरिंग है, तो उसकी सफरिंग जो है वो सोसाइटल ज्यादा है, फिजिकल ज्यादा है, लेकिन जो देवी पाठक की सफरिंग है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। तो इन Right. दो लोगों की सफरिंग की कहानी है जो एक जगह पे जाकर के मिल जाती है। दिस इज बेसिकली द प्लॉट। प्लॉट्स Right. में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे उनके फादर का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके छोटे मोटे प्रयास हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द कैरेक्टर्स एक्सप्लोर। Okay, okay. And you have correctly and rightly mentioned, and I would like to accentuate the point that in Devi Pathak's life,
an unfortunate incident brings all the turmoil. But if we try to understand Deepak's life, he's born in a family that doesn't have that much respect in society, that doesn't hold that much respect or that type of position in society. So he's condemned to a very poor type of life. And there is a scene in the movie in which he also tries to explain this thing to the character played by Shweta Tripathi. So there is a scene where he tries to make her understand that he comes from that portion or that corner of society that is not acceptable. Like, people do not want to hang out with them. People do not want to eat food that they already have touched. So he basically comes from a family which is to some extent which is so called untouchable. Okay, moving to the Yes. character. Would you like to add something to it, sir? No, no, exactly that point. I thought we would mention in the action sequences where that particular incident, जहाँ पे वो विकी कौशल यानी कि जो दीपक कुमार है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात समझा रहा होता है कि वो अवेयर है। जब वो Right, कहता है कि लेके चलो, जानना चाहती हो कहाँ रहता हूँ मैं, तो वो right, दिखाना चाहता है वो जगह। इट मीन्स ही इज अवेयर ऑफ हिज सोशल पोजीशन right, right. Of इन द course, we will. सोसाइटी, वो उसकी सफरिंग से अवेयर है। Right. Of course, we will discuss this thing in detail in the action segment. So let us move to the character pertaining questions. Tell me about the characters and tell me the names of the characters that you like, and the characters that you think that they are good. So please explain about those characters, your favorite characters. तने ऐसा कोई फेवरेट डिवीजन नहीं हो सकता है इसमें। विकी कौशल का काम डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ऋचा चड्ढा भी काफी अच्छी कलाकार है। दो तीन Right. चीजें मैं आपको कैरेक्टर के पॉइंट पे बताना चाहूंगा। इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स है, मैंने बताया कि दो लोगों की कहानी है। देवी पाठक प्लेड बाय ऋचा चड्ढा एंड दीपक कुमार प्लेड बाय विकी कौशल। इन दो लोगों के अलावा श्वेता त्रिपाठी जो विकी कौशल की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर निभा रही है, सालू गुप्ता जिसका नाम, सो दैट टाइटल्स बिकम इम्पोर्टेंट। तो सालू गुप्ता, वो श्वेता त्रिपाठी ने भी अच्छा काम किया है। संजय मिश्रा देवी पाठक के फादर के कैरेक्टर में है, विद्याधर पाठक, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है और उस इंसिडेंट की वजह से उन्हें एक हैफ्टी सम ऑफ अमाउंट जो है वो जमा कराना है। Right. और दैट क्रिएट ऑल द क्योज, आप कह सकते हो। जो सारी प्रॉब्लम है वो उसी अमाउंट को लेकर के है, उस जो सफरिंग है वो उसी अमाउंट को लेकर के है। देवी And उसके फादर के and that लिए, okay, please continue. Please continue. ओके, उनके फादर के लिए। और दूसरी चीज जो ये है कि हालांकि देवी पाठक के कैरेक्टर के लिए वो अमाउंट की सफरिंग से ज्यादा वो साइकोलॉजिकल सफरिंग, Correct. ये भी आपको समझना है। Correct. एक पंकज त्रिपाठी का एक छोटा सा रोल है, ठीक है, Right. बहुत छोटा रोल है, लेकिन उसको आप गेस्ट अपीयरेंस या स्पेशल अपीयरेंस के फॉर्म में, कि उनके स्टार कास्ट को यूज किया गया है, ऐसी बात नहीं। उस समय भी पंकज त्रिपाठी अच्छे एक्टर थे, बट वो एक जरूरी कैरेक्टर है फिल्म में। वो किस लिए आता है कि वो जो उसकी सफरिंग चल रही है, उस साइकोलॉजिकल सफरिंग में थोड़ी बहुत उनको रिलीफ दे सके, उनको काम कर सके, सूट कर सके, पैसिफाई कर सके, ठीक है। वो जो जिंदगी चल रही है उसमें थोड़ी मिठास घोल सके। वो Right. खीर खिलाने वाला सीक्वेंस भी एक मेटाफर है, Right. कि जिसने Right. खीर नहीं खाया, मेरे पिताजी ये जो कहते हैं, ये जो डायलॉग है, Mhm. ठीक है, वो मनुष्य योनि में जन्म होने का लाभ नहीं उठा पाया, ऐसा वो जो बात बोल रहे हैं वो भी मेटाफोरिकल है। अगर आप ध्यान से समझे तो वो मिठास बोलने की कोशिश कर रहा है। Right. उसके Right. बाद भगवान तिवारी का जो भगवान तिवारी ने निभाया है इंस्पेक्टर मिश्रा का कैरेक्टर, Right. जो विलन की तरह जिनको आप देख सकते हो इस फिल्म में, बट उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और वो चीजें। फिर उसके बाद वो छोटा बच्चा जिसपे वो दाव लगा रहे हैं उनके पिताजी, Right. जिसका Right. नाम है झोटा। अब ऐसे नाम, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ बहुत रॉ और रियल है। उस बच्चे का नाम है झोटा, ठीक है, तो बहुत रॉ और रियल पिक्चराइजेशन उसके। तो यही लोग मेजर कैरेक्टर्स है और सबने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। आपको लगेगा ही नहीं कहीं पे भी कोई एक्टिंग कर रहा है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो सारे लोग बनारस के ही हैं। एक्सेंट बिल्कुल प्रॉपर पकड़ा है। जैसे सालू गुप्ता की एक फ्रेंड है, ठीक है, हालांकि मल्लाह का आपको इसमें सत्यकाम आनंद भी दिखते हैं मल्लाह के एक रोल में। Right. अगर नोटिस कर पाए, विक्रम नाम का एक मल्लाह है और उसका रोल जो है वो सत्यकाम आनंद ने किया है। तो हु इज ऑल्सो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में फेम
तो उनका भी रोल काफी बेहतरीन है इसमें. तो these Hmm. are the cast, are the characters in this particular story or in this particular film. Right. Good. And I too have noticed that this story or the characters, basically each and every character carries his or her own independent story. They all have a completely independent story, and the role of Pankaj Tripathi is quite prominent. You cannot imagine this movie without Pankaj Tripathi. Okay, he is not there in guest appearance. He has been included in the movie deliberately, right? Because there was a role that only Pankaj Tripathi could perform. And viewers just know one thing, as far as my knowledge is concerned, Pankaj Tripathi remains totally unaware of the turmoil that Devi Pathak has been going through throughout the movie. So Exactly. he comes in front of her. He tries to provide comfort to Devi Pathak. He tries to initiate conversations with Devi Pathak, and so that's pretty much what he does throughout the movie. Okay, so moving to the next segment, themes and action. So sir, please say something about the theme, and also tell me about the scenes that you like or the scenes that have left deep impact on you or your conscience. So please, over to you. First themes and then action series or sequence, please sir. या तो थीम, जैसा हमने बात भी की कि सफरिंग की जो थीम है, और बहुत सारे दो तीन फिलॉसफी है. जैसे अगर मैं थीम की बजाय अगर इसको ऐसे रिफ्रेज करूं थोड़ा सा, या इस पे बात करूं कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मसान, तो दो बातें हैं. पहला ये कि ये बहुत सारे डॉट्स हैं Right. जिनको जो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, ये आपको समझना है. Hmm. दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे डॉट्स है जो कनेक्टेड है. ये दुनिया कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, ये दुनिया Hmm. एक छोटी जगह है, ये वाली जो फिलॉसफी है. Hmm. और यहाँ सबको एक ना एक दिन किसी पॉइंट पे जाकर के मिलना है. बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं. Right. दूसरी फिलॉसफी की मैं बात करूं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है, इस पे भी ये बात कर ही रहा है. सफरिंग वाला जो है, बहुत आइकॉनिक डायलॉग जो है कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है. Hmm. ये जो डायलॉग है जो जिसके लिए विकी कौशल मतलब काफी आइकॉनिक हुआ, मीम्स बने जिस डायलॉग्स के आगे चल करके. और ये चीज है. तो बहुत सारे डॉट्स वाली जो फिलॉसफी है, लाइफ सफरिंग है, और उसके अलावा जो री इनकारनेशन की बात है, पुनर्जन्म वाला जो सिद्धांत है. बट Right. यहाँ पे ध्यान ये है कि ये पुनर्जन्म लिटरल सेंस में नहीं, No, it's a fresh कहने का start. मतलब It's a fresh start. हाँ, इट्स Once फ्रेश something bad has स्टार्ट. happened, you have to start afresh. It's a fresh start. या एग्जैक्टली था. दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट. मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता जो सीबीएसई के सिलेबस में है, डस्ट ऑफ स्नो, वो Hmm. याद आता है. वो कह रहे हैं कि अगर कुछ बुरा हो जाए आपके साथ तो आपको दिन भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं. Hmm. द सेम मैसेज कैन बी सीन इन दिस फिल्म मसान. अगर आप Right. ध्यान देना चाहें कि बुरा अगर आपके साथ हो गया, Hmm. तो एक रे ऑफ होप जहां पे फिल्म खत्म हो रही है, वो एक रे ऑफ होप ही है, एक उम्मीद की किरण है Right. बेसिकली, कि Right. उसको पूरी जिंदगी ढोने की जरूरत नहीं है. Right. कोई भी बुरी चीज जो आपके साथ हो गई उसको पूरी जिंदगी ढोने की जरूरत नहीं है. सेम थिंग ये चीज हालांकि अच्छी चीजों के साथ भी हो सकती है कि कोई कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको आप पूरी जिंदगी ढो रहे हैं उसी एक अचीवमेंट के सहारे. ठीक है, तो अच्छी चीजों को भी मेरे हिसाब से नहीं ढोना चाहिए बहुत लंबे समय तक. मतलब उसको लेकर के आप खुश हो सकते हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, आप खुश हैं, लेकिन सिर्फ उस एक चीज को लेकर के बहुत लंबे समय तक नहीं. यू शुड हैव, जैसे मान लो कि किसी ने कोई फिल्म बना दी बहुत मास्टरपीस, और Right. उसके बाद वो बहुत फिल्म में बहुत अच्छी नहीं बना पा रहा है, तो सिर्फ वो उस फिल्म के बारे में बात कर रहा है. तो दीज आर द थिंग्स. किसी ने एक फिल्म बना दी बहुत बुरी, और सारे लोग अब उसको सिर्फ उसी के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो काम आपका बहुत बुरा हुआ. द Right. सेम थिंग सक्सेस एंड फेलियर्स, इसका बर्डन नहीं है ये फिल्म जो ये चीज. हालांकि फेलियर नहीं, वो तो इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो जिसमें उनका रोल नहीं है. सक्सेस और फेलियर में खास तौर पे इंसान का रोल होता है. तो फेट का रोल है इनमें, जो भी उन लोगों के साथ हुआ, देयर इज Right. नथिंग रॉन्ग. ठीक है, इट इज जस्ट द रोल ऑफ फेट. जो भाग्य है, वो दुर्भाग्य से वो दोनों चीजें दोनों लोगों के साथ जो है वो होती हैं. So Right. this is the thing that this particular film tries to narrate Convey. us, or try to preach us or teach us, जो भी आप कहना चाहें. Hmm. एक
चीज मैं एक्शन पे बात करना चाहूंगा, कुछ एक सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूंगा जो फिल्म में कुछ एड ऑन भी करता है और जिसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। हम्म पहला एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जहां सालू गुप्ता यानी कि जो विकी कौशल की गर्लफ्रेंड बनी है, दीपक कुमार की जो गर्लफ्रेंड है, हम्म वो ये कहते हैं कि, और वो कहता है कि वो कुछ गोलगप्पे के लिए हल्ला कर रही थी और दीपक कुमार के या कोई कैरेक्टर कहता है कि 5 रुपए के लिए कोई लड़की कि 5 रुपए या 10 रुपए के गोलगप्पे के लिए कोई लड़की इतना उत्पाद भी तो नहीं बचाती। वो जिस एक्सेंट में ये बात बोलता है ना, वो पर्टिकुलर बनारस का टोन है। राइट ठीक राइट है, या फिर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर उनका क्या ही कहा जाए, उनकी राइट entry होती है, वो बहुत इत्मीनान से बैठे हैं टिकट काउंटर पे, वो ये हटाते हैं और कहते हैं, और एकदम बहुत बहुत इत्मीनान से, इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी कि और बाबू कहाँ जाओगे। हम्म ठीक है, तो बताओ बाबू कहाँ जाओगे, या इस तरीके से की जो डायलॉग डिलीवरी है वो बनारस में काफी कुछ ऐड करता है। तो वो राइट बनारस का प्रॉपर सीक्वेंस उसमें ऐड होता है। एक और एक्शन सीन है जब देवी पटक के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो घर आती हैं, उनके पिताजी को ये बात पता चल चुकी होती है, इंस्पेक्टर और सारे इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं। 2 मिनट का कॉन्टिन्यूअस सीन है, अगर आप देखेंगे कैमरा उन दोनों को फॉलो कर रहा है बारी बारी से, राइट और एक भी डायलॉग नहीं, नॉट अ सिंगल डायलॉग। 2 से 2.5 मिनट का आई होप वो सीन, वो राइट सीन काफी कहना चाह रहा है राइट अगर आप द डायलॉग्स ऑल्सो। और फिर दोनों एक ही फ्रेम में आते हैं, जिसका एक सेंस ये भी निकल के आता है कि उसका फादर जो है वो प्रॉब्लम में वो अपनी बेटी के साथ खड़ा है। राइट ठीक है, he तो is ये जो sad चीज है, but he is supporting his daughter. यस ही इज सैड, और आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत उदास है, थोड़ा हो सकता है कि गुस्सा भी हो, बट Right. स्टिल वो उसके साथ खड़ा है, वो उसको He सपोर्ट कर is रहा with है, वो he is with her. He has not हाँ, abandoned her. हाँ, he has not abandoned her, वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला है। that is the message without the dialogues। और कायदे से उस सीन को डायलॉग से भरा भी नहीं जा सकता था, कोई Right. भी डायलॉग राइटर उस पर्टिकुलर सीन को, मुझे नहीं लगता है कि उसको डायलॉग से भर सकता था। In that particular scene, silence basically is the dialogue. या एग्जैक्टली। So the silence that we notice is the dialogue. Okay, so ओके, two तो मेरे things. हिसाब से ओके, Please, एक्शन और ये चीज में इतनी ही चीजें हैं। आई होप अब हम लोग साउंड ट्रैक और गानों वगैरह पे बात करके इसको सम अप कर सकते हैं। please. Okay, so moving to the last part of this particular conversation series, which is sir would now comment or would like to explain about the sound and the songs of this particular movie. So please, sir, share your experience and the details that you have about sound and music and lyrics of those songs. Please, sir. जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी उन्होंने तो पता ही होगा, या फिल्म अगर नहीं भी देखी होगी तो फिल्म से ज्यादा पॉपुलर वो गाना है, तो किसी रेल सी गुजरती है, Correct, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। correct. दरअसल उसके लिरिक्स भले ही वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं, बट इट हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम ए पोयम बाय दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार की एक पोयम है पूरी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, वरुण ग्रोवर ने लिखा है, और बहुत अच्छा। कहीं पे भी मतलब जो कहते हैं ना, कई बार कविता से जब गाना बनाया जाता है तो उस कविता की आत्मा को मार दिया जाता है, ये बात मैं बहुत के साथ करो, बट इस गाने में ऐसा कहीं नहीं होता है। इट इज दूसरा ये है कि वो ठूसा हुआ गाना नहीं है, उस गाने की रेलेवेंस है। Right. तो ये सारी चीजें हैं ही। और वो गाना जो है, जो इस कहानी में एक छोटी सी लव स्टोरी चल रही है, बहुत ही अच्छा रोमांस जिसको आप कहेंगे, उसको और ज्यादा मतलब स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, और मजबूती प्रदान करता है अगर आप देखें तो ये गाना। उसके बाद दूसरा एक थोड़ा सा ट्रैजिक सॉन्ग है, मन कस्तूरी, Yes. जो तो अमित किलाम ने गाया है, और इसके भी लिरिक्स जो है वो पार्शियली शायद वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं, कोई एक और राइटर हैं जिन्होंने, शायद 2 लोगों ने मिल करके ये गाना लिखा है मन कस्तूरी, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, बट वरुण का ही मेन रोल है। और मन कस्तूरी अगर आप सुनेंगे और उसके लिरिक्स देखेंगे तो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग जिसको आप कह सकते हो। दूसरे उसके अलावा अगर आप डायलॉग्स के फॉर्म में, मैं लिरिक्स पे चूंकि बात कर रहा हूँ,
तो Hmm. डायलॉग्स के फॉर्म में भी आप देखेंगे कि डायलॉग्स भी थोड़े बहुत पोइटिक हैं, क्योंकि वरुण ने लिखा है तो जाहिर सी बात है वो उसमें वो पोइट्री वाला लेवल आएगा ही आएगा। शायरी Right. वगैरह का इस्तेमाल करना, वो जो गोलू गुप्ता का कैरेक्टर है वो दीपक कुमार के कैरेक्टर को फोन पे शायरी सुना रही होती है, और दीपक कुमार का कैरेक्टर जो आर्ट और लिटरेचर से बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। ठीक है, और वो भी एक ऐसी कम्युनिटी, मतलब जिस कम्युनिटी से आता है वहां इस एस्थेटिक्स आर्ट और एक चीज ये भी उस पर्टिकुलर सीन को भी आप इरेलेवेंट नहीं कह सकते हो कि सिर्फ रोमांस के लिए है। उसका Hmm. एक मैसेज ये भी है कि आर्ट और एस्थेटिक्स जो है ना, वो जो जो द सो कॉल्ड अनटचेबल्स जिनको आप कह रहे हो, उनके लेवल पे आर्ट और एस्थेटिक्स पहुंचा ही नहीं है अभी, क्योंकि Right. उनको पहली चिंता तो भूख की चिंता है। आर्ट और एस्थेटिक्स पेट भर जाने के बाद की चीज है। इसको लेकर के जो कमेंट आप कह सकते हो ये है, क्योंकि वो पूरी शायरी सुना देती है और कहता है कि अच्छा आगे, तो वो बड़े आसानी से वो बताती है कि इतना ही था, मतलब उसको समझ नहीं है ये भी दिखाया जा रहा है। Right. बट साथ ही साथ सीन रोमांटिक भी है Hmm. कि खासतौर पे ऐसा ही होता है कि दो लोग अगर रोमांस में है तो एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा जानकार है किसी चीज का, दूसरा व्यक्ति उस चीज को नहीं जानता है, तो बनता है बेसिकली, और ये सीन रोमांटिक भी जान पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। साउंड ट्रैक दोनों ही गाने काफी सुने जाते, उसके अलावा भोर नाम का एक गाना है, वो Hmm. भी अच्छा है, बट ज्यादातर बात जो है वो तो किसी रेल सी या मन कस्तूरी को बहुत ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम किया गया है। सो Correct. दीज आर थिंग्स। Would you like to add something else, sir, or should I wrap the show up now? एक दो चीजें हैं, जैसे मैं जब थोड़ा सा इसके रिव्यूज को लेकर के पढ़ रहा था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शेखर गुप्ता ने, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी इस फिल्म पे लिखा था, तो वो पढ़ा जा सकता है। और काफी कुछ है जो आप देख सकते हैं इस फिल्म को लेकर के। अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से हमने बातें कर ली है काफी, और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है वो जरूर देखें, और जिन्होंने देख रखी है वो भी अगर उनको लगता है कि इस डिस्कशन के बाद उन्हें फिर से देखना चाहिए कुछ चीजों को नोटिस करने के लिए, तो वो देखिए। एक एक्शन सीक्वेंस जो शायद हम लोगों से छूटा, जिसका कुछ मैसेज है, कि वो दशहरे के मेले के लिए दीपक कुमार का कैरेक्टर अपने फादर के पास जाता है पैसे मांगने, और वो कहता है कि 300 रुपया ले ले, और उसका फादर कह रहा है कि ले लो, मतलब सब तुम्हारा ही है। ये जो सेंस सिंपल सा ये है कि वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है वो गरीबी झेले। तो Hmm. एक फादर की बेसिक इच्छा होती है उसको दिखाने को बहुत रॉ और रियल तरीके से, खासतौर पे उस वो कम्युनिटी का पिक्चराइजेशन बहुत रॉ एंड रियल। तो एक लाइन में कहेंगे, बहुत रॉ एंड रियल कहानी यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दो धाराएं, ठीक है, गंगा की दो धाराएं जो संगम पे जाकर के मिलती है, कहानी बनारस से इलाहाबाद में जाकर के खत्म होती है, विच इज अ वेरी नाइस वे टू नरेट दिस पर्टिकुलर स्टोरी। Wonderful, wonderful. And I would like to add three things before I wrap this show up. Basically, I have learned three things from Sir today. First, that fathers are very supportive in this movie. Any fathers are very supportive in this movie. Second, not even for a second, this movie detaches itself from the culture of Banaras. You can feel the culture of Banaras prevailing in each and every moment, in each and every dialogue, and in each and every scene of this particular movie. Third and most important lesson that can be drawn out of this movie is that do not let your failures and success bewitch you or hypnotize you. Okay, stay quite neutral. Try to understand things from a very neutral state of mind and all. So these are the things that I have learned from this movie, and we will continuously bring different movies and talk about them. And viewers, if you think that there are movies that we should talk about, please drop the names of those movies in the comment box. So that's the end of this particular show. We will return back soon. Thank you very much.